Good morning, student. Today I have teach you some important things in career option in physical education. तो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, खेलों का प्रसारण। आप लोग देखते होंगे कि टेलीविज़न पर, इंटरनेट पर हर जगह आजकल खेल का प्रसारण हो रहा है। तो मच लाइक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग brings the game to those who are unable to watch them in person. Broadcasting is conducted through media such as radio, television, and cable. Nowadays, the internet is also used as a platform for broadcasting, and matches can be watched live on mobile phones. A person interested in this business should be knowledgeable when it comes to rules of the game, including those of officiating or refereeing, and he able to translate the whole event minute by minute to viewers and listeners. A background in physical education comes handy while studying the physiological aspects of the game. A well-informed and talented broadcaster adds an ingredient of excitement to the event. To gain experience before applying for the job, one can practice one's skills by participating in college or local events as another or कमिटमेंट और कमेंटेटर के रूप में भी। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के जिन पत्रकारिता के समान ही खेल प्रसारण उन लोगों के लिए होता है जो खेल के आयोजन जहाँ कहीं भी होता है, अगर उसको वहाँ मैदान पे या स्टेडियम में बैठ के नहीं देख पाते हैं, उन करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप मैच का लाइव टेलीकास्ट अपने घर में बैठ कर के देख सकते हैं। इसका पहले माध्यम था रेडियो पर कमेंट्री आना, बाद में टेलीविज़न पर आना शुरू हो गया, फिर केबल जब से आया उसने घर घर खेल को पहुंचा दिया, और जैसे मीडिया के माध्यम से इनके प्रसारण का आयोजन किया जाता है। आजकल इंटरनेट का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अब आप अपने मोबाइल पर बैठे बैठे ही सारे गेम्स को आप देख सकते हैं, और जहाँ तक संभव होगा ये इंटरनेट के युग में जितना भी करंट और लाइव दिखाया जा सकता है वो एफर्ट जारी है, बिना किसी विलम्ब के। सारे चाहे किसी भी खेल का मैच हो वो आप लोगों को बिना किसी बाधा के आपके पास वो अवेलेबल कराते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, for those who have a strong passion for the camera, sports photography is a career option. They get to indulge in their interest in photography and turn it into a serious income source by working full time for newspapers and magazines for freelancing for them. A person who is already familiar with physical education, particularly biomechanics, can capture the best angle of the players in action. Furthermore, she or he should take courses in photography and practice as much as possible in order to become a professional in this field. जिन लोगों को फ़ोटो खींचने का बड़ा जुनून होता है वे स्पोर्ट्स में फ़ोटोग्राफी को अपने करियर का विकल्प चुन सकते हैं। वे अपने इस इंटरेस्ट को न्यूज़ पेपर्स में, मैगजीन्स में, फ्रीलांसिंग मतलब एक जो अपने इंडिविजुअल या आज़ाद रूप से कार्य करके पूर्णकालिक काम करके इस तरह का काम करके अपना करियर बना सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई की हो और विशेष रूप से बायोमैकेनिक्स का ज्ञाता हो, वह खिलाड़ियों की खेलते समय की तस्वीर हर कोण से और अच्छी प्रकार से लेने में सक्षम होता है।
इसके अलावा जॉब करने के लिए उसे फ़ोटोग्राफी से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ाई करनी चाहिए और जितना संभव हो उतना उसको उसका एक्सरसाइज भी करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। Publication and authorship of books. To increase awareness of health issues and to fortify physical education and allied subject as an important disciplines, the youth and the public in general needs books of high standard. Aspiring authors and editors should equip themselves with academic knowledge of the subject. For editors, the job additionally includes surviving the demands of the market and the comparative value of books available. Those in sales are tasked with doing promotions of product so that more people buy it. The some disciplines on which books may be written and published. Physical education and sports, their foundations, current scenario in India, future prospectus of physical education and sports, etc. स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे अंदर जो विचार होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, हम संबंधित विषयों को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हम फिजिकल एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। युवाओं और जनता के बीच आमतौर पर उच्च मानक की जो बुक्स होनी चाहिए वो अभी है नहीं, तो ऐसे बुक्स की बहुत ज़रूरत है जिन बुक्स को पढ़ कर के लोग मोटिवेट हो सकें कि हमारा फिजिकल एजुकेशन में क्या हम कैसे फिजिकल एजुकेशन को अडॉप्ट करें और किस प्रकार से हम अपना समय निकालें कि हम अपने जॉब के साथ, नौकरी के साथ रहते हुए भी हम किसी भी प्रकार से फिजिकली फिट भी रह सकें। तो ये सारी चुनौतियां हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की और जो हमारे फिजिकल एजुकेशन और खेल की जो नींव है, इंडिया ने वर्तमान परिदृश्य में भविष्य में संभावनाएं आदि तलाशनी शुरू कर दी हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि स्पोर्ट्स में बुक राइटिंग की जाए और बुक राइटिंग करके हम अपने देश के लोगों को जगा सकते हैं, तो इसका बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन उसके लिए आपको पहले उस लेवल तक जाना होगा, उस लेवल तक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप इतने बड़े समुदाय को आप प्रोत्साहित कर सकें और वो फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आ सके। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर है सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कैरियर्स। सॉफ्ट स्किल इन ऑर्डर टू हैव ए सक्सेसफुल कैरियर, एजुकेशन qualification are not the only assets to possess. Your skill sets count for a lot and will be assessed at every point. These skill sets can be hard skills which are teachable and measurable abilities such as typing, knowledge of computer and math, writing, etc. are soft skills which are less tangible and quantifiable. Soft skills are related to your personality and character. They are subjective qualities that cannot be reflected in your certificates. Rather, they are reflections of who you are as a person. Are you capable of being a leader? Can you resolve conflicts successfully? Do you communicate fluently with others, whether they are a higher authority or working under you? At all levels, interaction with people and classes with obstacles are inevitable for this reason.
possessing the essential soft skills discussed below is a must for a fruitful career. तो बहुत सॉफ्ट स्किल का होना और बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार के करियर को भी हम बना सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, एम्पैथी है, वर्क एथिक्स है और टीम स्पिरिट है। इन सब चीज़ों के माध्यम से भी हम अपना इन सब चीज़ों में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हम आपको कुछ जानकारी दें कि हमारे देश में किस प्रकार के टूर्नामेंट नेशनल लेवल पर होते हैं। जैसे आर्चरी होता है, आर्चरी में जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, अब मैं बता दूं आपको, मेल और फीमेल के लिए नेशनल तीरंदाजी चैम्पियनशिप होती है और इंटरनेशनल में ओलंपिक गेम्स, तीरंदाजी एशिया कप, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप, ये टूर्नामेंट होते हैं। आप ये इंटरनेशनल में। एथलेटिक्स में नेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप एंड फेडरेशन कप, ये हमारे राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय स्तर के जो टूर्नामेंट होते हैं, ये उनमें एथलेटिक्स में आयोजित किए जाते हैं। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हैं, इसमें ओलंपिक खेल है, एशियाई खेल हैं, राष्ट्रमंडल खेल है, IAAF एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉन्टिनेंटल कप, एथलेटिक्स विश्व कप होता है। बैडमिंटन में नेशनल स्पोर्ट्स होता है, नारंग कप होता है, ये जो है नेशनल मेल जूनियर टीम के लिए होता है नारंग कप। सफ़ी कुरैशी कप होता है, राष्ट्रीय महिला जूनियर टीम मेयर कप। ये नेशनल टूर्नामेंट होते हैं। और उसके बाद ये इंटरनेशनल पे आ जाइए, हम देखें तो सैयद मोदी चैम्पियनशिप ये इंडिया में है। विल्स वर्ल्ड कप ये इंटरनेशनल है। थॉमस एंड ऊबर कप है। एशियाई चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, IBF मीट, ओलंपिक खेल एंड सुदीर्घमन कप इन बास्केटबॉल। तो मेल और फीमेल के लिए राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय जूनियर अंतर्राज्यीय चैम्पियनशिप, फेडरेशन कप, ये बास्केटबॉल में इंडिया में होने वाली जो टूर्नामेंट है, जो नेशनल टूर्नामेंट है, हम उसका डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इसका इंटरनेशनल पहलू बताते हैं। FIBA ये जो टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, FIBA 3x3 वर्ल्ड कप, यूरो लीग, FIBA अमेरी कप, FIBA एशिया कप, ये इंटरनेशनल में होते हैं। इन बॉक्सिंग तो फीमेल एंड मेल को राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप एक होती है, ये है। मेल्स की जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इंटरनेशनल पर है। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ओलंपिक गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स, FIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब इन सब में होते हैं। इसी प्रकार क्रिकेट में होते हैं, रणजी ट्रॉफी होते हैं, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग आदि। तो इंडियन प्रीमियर लीग ये नेशनल टूर्नामेंट नहीं है, बाकी जितने मैंने आपको बताया इसमें कुछ छूट गए हैं। तो बहुत सारे टूर्नामेंट हैं नेशनल में, तो आप लोग सब जानते ही होंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, क्योंकि आप लोग क्रिकेट बहुत अच्छे से गौर करके देखते हैं।
और इंटरनेशनल लेवल पर है ICC वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एसएच कप, एशिया कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, नेट वेस्ट ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफियाँ जो होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं। फुटबॉल पर है संतोष ट्रॉफी, ये इंडिया का नेशनल टूर्नामेंट है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, आई लीग, IFA शील्ड एंड इंडियन सुपर कप। ये भारतीय सुपर कप जो हो रहा है, इंडियन सुपर लीग कप हो रहा है, ये इंडिया का नेशनल गेम्स में नहीं आते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में नहीं आते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर से हैं। और लेकिन चूँकि इंडिया में हो रहे हैं तो इसका बताना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार इसका वर्ल्ड लेवल पर है फीफा विश्व कप फुटबॉल है, फीफा महिला वर्ल्ड कप है, फीफा कन्फेडरेशन कप है, ओलंपिक गेम्स है, AFC एशियाई कप है, एशियाई गेम्स है। और जितने भी ला लीगा टाइप में आया और बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं वो नेशनल टूर्नामेंट नहीं होते हैं, वो फ्रेंचाइजीज़ कंपनियों के टूर्नामेंट होते हैं। और वो फ्रेंचाइजीज़ जितने भी होते हैं, चाहे IPL हो, चाहे ISL हो, या हमारे देश में जो कबड्डी का मैच होते हैं, ये सब फ्रेंचाइजी के होते हैं, इसमें खिलाड़ी बिके हुए होते हैं, इसलिए ये नेशनल टूर्नामेंट नहीं होते हैं। जिम्नास्टिक में जो नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप होती है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप एंड फेडरेशन कप, ये हमारे इंडिया में होता है। एंड वर्ल्ड लेवल पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स, विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप, एशियाई गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स। हॉकी रंगास्वामी कप, हॉकी में जो नेशनल टूर्नामेंट है रंगास्वामी कप है, ये फीमेल के लिए है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप फेडरेशन कप, ये भी फीमेल के लिए है। विंगटन कप, आगा खान हॉकी टूर्नामेंट, ये मेल के लिए है। लेडी रतन टाटा कप, ये फीमेल के लिए है। और इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, चैम्पियंस चैलेंज, कॉमनवेल्थ गेम्स, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, आल्प्स कप एंड हॉकी एशिया कप होता है। इसी प्रकार जूडो में आ जाते हैं हम, तो जूडो में नेशनल फेडरेशन कप, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ये टूर्नामेंट होता है। क्षेत्रीय जूडो चैम्पियनशिप होते हैं एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो जितने भी संघ होते हैं उनका एक अपना जूडो चैम्पियनशिप होता है। और मैंने तो इसमें बहुत सारे देखा है कि इसमें जूडो वाले में कि जिसको देखो वही अपने आप को इंटरनेशनल बताता है, तो थोड़ा सा समझ में मेरे काम आता है कि विश्व जूडो चैम्पियनशिप, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई जूडो चैम्पियनशिप, जूनियर एशियाई जूडो चैम्पियनशिप, ये सारे गेम्स होते हैं। फिर इसी प्रकार गेम्स होते हैं हैंडबॉल का नेशनल स्पोर्ट्स होता है। HI जो मेल की राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट होते हैं उसकी चैम्पियनशिप होती है। AHFI फीमेल नेशनल टूर्नामेंट होता है। और इंटरनेशनल में ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, IHF वर्ल्ड मेल एंड फीमेल की हैंडबॉल चैम्पियनशिप, IHA सुपर ग्लोब, ये हैंडबॉल के टूर्नामेंट होता है। कबड्डी में बताया आपसे कि प्रो कबड्डी लीग जो फ्रेंचाइजीज कंपनियों की होती है, नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप फेडरेशन कप होता है। और वर्ल्ड लेवल पर होता है एशियन गेम्स, कबड्डी वर्ल्ड कप, SAF खेल, SAF साउथ एशियन पैसिफिक गेम्स होते हैं, ये उनका होता है। खो खो में फेडरेशन कप, नेहरू गोल्ड कप, नेशनल खो खो चैम्पियनशिप, इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप, शिवाजी कप। एंड इंटरनेशनल में ICC खो खो, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल खो खो टूर्नामेंट कराए जाते हैं। निशानेबाजी में अगर आ जाएं हम तो नेशनल निशानेबाजी चैम्पियनशिप इंडिया में ऑल इंडिया GB मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप, तो ये हमारे देश में होती है। देन आफ्टर है ओलंपिक गेम्स,
ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप, ISSF वर्ल्ड कप एंड नेशनल कॉमनवेल्थ गेम्स। अब हम आते हैं तैराकी की तरफ। तो तैराकी में राष्ट्रीय तैराकी चैम्पियनशिप होती है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तैराकी चैम्पियनशिप होती है, इंटरनेशनल एशियाई गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, फिना तैराकी वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड एक्वास्टिक चैम्पियनशिप, ये इंटरनेशनल होते हैं। टेबल टेनिस में नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस चैम्पियनशिप और इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। ताइक्वांडो में नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप होता है एंड वर्ल्ड लेवल पर ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड ताइक्वांडो चैम्पियनशिप ये सब होते हैं। तो टेनिस के लिए है ऑल इंडिया चैम्पियनशिप, चेन्नई ओपन एक्सेट्रा एंड ओलंपिक गेम्स, विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, डेविस कप। ये टूर्नामेंट होते हैं। इनमें जो 4 होते हैं विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, तो ये चारों बहुत विशेष टूर्नामेंट होते हैं और इन टूर्नामेंट के जो विजेता होते हैं उनका दुनिया में बड़ा सम्मान होता है। तो इनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। फिर है वॉलीबॉल। तो मेल एंड फीमेल के लिए नेशनल लीग, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कप, नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप एंड इंडियन वॉली लीग। और इंटरनेशनल में है ओलंपिक गेम्स फॉर मेंस एंड फीमेल्स, मेल एंड फीमेल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर बोथ एंड वर्ल्ड ग्रैंड चैम्पियंस कप इसे आदि। तो और वेट लिफ्टिंग में आते हैं हम। वेट लिफ्टिंग में मेल एंड फीमेल के लिए नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाता है। यह जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग एंड मिडिल वेट के लिए होता है। और इंटरनेशनल में ओलंपिक, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में होता है ये भी, एशियन चैम्पियनशिप एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। एंड अब हम आते हैं कुश्ती में आते हैं। तो राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप होती है, ये भी 3 वर्ग में डिवाइड होती है एंड ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप आदि। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे खेलो इंडिया के बारे में। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि जो स्कूल CBSE के जितने भी स्कूल हैं या और भी जो स्कूल हैं उनके बच्चे इंडिया लेवल पर आकर के परफॉर्मेंस दें। और उसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर स्कूल लेवल से अगर अच्छे एथलीट्स या अच्छे खिलाड़ी हमको मिलते हैं तो हमको ओलंपिक में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये एक उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो CBSE स्कूलों में या कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन 12th की पढ़ाई के बाद उनका सारा फोकस दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। तो अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी वो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए वो खेल से बाहर चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है कि वो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका खेल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा हो, जो आगे खेलना चाहते हो, तो एक चैम्पियनशिप का आयोजन कर दिया खेलो इंडिया का। अगर उसमें आकर के अच्छा पार्टिसिपेट करता है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको फिर नेशनल लेवल पर और आगे बढ़ने का अच्छे कोच मिल जाते हैं और उसकी ज़िंदगी ही बदल दी जाती है। तो ये उद्देश्य है खेलो इंडिया कार्यक्रम का। तो इससे क्या होगा देश में, इससे हमारे देश में जो खेल के मैदान है उनका डेवलप होगा। जो कोचिंग कराते हैं लोग
बहुत सारे लोग कोचिंग में भी अच्छा जुड़ जाएंगे और उनको कैरियर बन जाएगा। फिर है नेशनल लेवल पर खेलो इंडिया केंद्र बन रहा है, उसमें लोगों को जॉब्स भी मिल रही है और इसमें साल में खेल कूद प्रतियोगिता भी हो रही है जिससे खिलाड़ियों को निखरने का मौका मिल रहा है। फिर वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है जो स्कूलों में कराई जा रही है, उनमें जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। प्रतिभा खोज कराई जाती है और विकास किया जाता है। अगर अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं तो अच्छी प्रतिभाओं का जो खोज होती है उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उनको अच्छे खिलाड़ी बनाया जाता है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जाता है और उसको बना करके उसका उपयोग किया जा रहा है और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय खेल शिक्षाविदों को समर्थन मिल रहा है। तो इसका प्रयोग है इंडिया में और बहुत बढ़िया प्रयोग शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग भी किसी भी स्कूल से अगर पार्टिसिपेट्स कर रहे हो, अपने स्कूल से कर रहे हो, तो फोकस होना चाहिए CBSE के क्लस्टर में आगे बढ़ कर के खेलना है और स्पोर्ट्स के माध्यम से भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओलंपिक, तो हम ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे भी आपको और मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से अभी तक पढ़ा है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और पर्सनल कमेंट से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। मैं कल देख रहा था एक लड़के ने लिखा है कि सर ये रीडिंग कर रहे हैं क्या, तो बेटा बिना रीडिंग किए हुए मेरे समझ में तो ऐसा है कि ना तुम्हें समझ में आएगा ना मेरे समझ में आएगा और फालतू की कमेंट देने से बचें, तो बहुत अच्छा है। और आप बहुत समझदार बच्चे हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आप अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं और जो मेरे लिए है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जो आपके ऊपर है वो आप अपने स्तर से करिए। और हाँ, जहाँ पर आपको दिक्कत है, कठिनाई समझ में आ रही है, प्लीज़ हमको वहाँ पे क्वेश्चन करिए। हम बैठे हैं आपको आंसर देने के लिए, आपको समझाने के लिए। अगर वहाँ पे कोई त्रुटि होती है तब फिर हम उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फालतू कमेंट करने से आप लोग बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।